think कपिल को पंछियों से बहुत प्यार है. So I think उसके वजह से he has agreed to this. Also his favorite color is red. Right. So I think coming together of both of them, we managed to convince Kapil Right. to take this up. No, but jokes aside, I think at Sony we have a very close relationship with Kapil. More like a family to the Sony team as well. And when we thought of this, जब हमने सोचा कि यार who can we cast? Because the previous Angry Birds film that was there, it did really well in India. It's now amongst the top 5 animated films in the country today. So he said इसको अगर और बड़ा बनाना है तो कैसे बनाएं? Right. And तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आया. Somebody who's has fans from 8 to 80, who's making India laugh. Absolutely. And then nobody other than Kapil Sharma came to our mind for the cast of Red. Right. So that's how we got Kapil associated with this. Then we said ki now the ensemble that is there, because the film has great characters and great ensemble. So for the character of Leonard the pig, we said who do we have, and within the team there's the biggest comedy stars that India has. We said why don't we get Kiku Sharda to voice Leonard the pig, because in the movie अगर आप देखें उनकी एक नोक झोंक चलती रहती है, एक लव हेट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, जो अभी रियल लाइफ में भी उनके स्टेज पे भी आपने देखा होगा काफी है. So it's actually very true to their character. And then we have this big villain who's got a really amazing laughter. So we said again सबकी अच्छी laughter किसकी है amongst the comedy stars? So we said Archana Puran Singh ji, of course, who's got unmatchable energy and great vibe, and you will see all of that come together on the screen, when more things unfold, and when you see the film that releases on 23rd of August, which is this week. We've also dubbed it in Tamil and Telugu, so there's English, Hindi, Tamil and Telugu. And once you see this magic, तड़का आप देखेंगे एक screen के ऊपर, तो I think it'll really upload port हो जाएंगे. Basically roll with laughter. And I think it's an experience you have to see to believe. Right. तो जहाँ तक लोड पोर्ट होने की बात और देखने की बात की, एक काम करते हैं, we'll play the trailer once, जिसको already इतने सारे views मिल चुके हैं. It's already a super duper hit. So we'll take a look at the trailer of Angry Birds 2, ladies and gentlemen. All eyes on the big screen. दिख रहा है यहाँ पे सबका. One more time, I would like to invite Vivek sir वापस से sir. सर ट्रेलर देख लिया, रिस्पांस भी मिल गया, सारे हंसते खेलते चेहरे दिख रहे हैं. Correct. So let's invite the cast. लेनर्ड और रेड को बुला लेते हैं, क्या बोलते हैं? नितिन, इतना आसान नहीं है. आई थिंक उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा. और आई थिंक हमारे जो यहाँ पे दोस्त बैठे हैं उनसे एक, क्योंकि ये गेम पे बेस्ड है पिक्चर, तो एक गेम तो खेलना जरूरी बनता है सर, बनता है. ओवर टू यू नितिन, आप जरा इनको, बेसिकली हमको 3 लोग चाहिए जो आके यहाँ पे आके इस जो ये माउंटेन बनाया है लेनर्ड द पिग टिन्स का, उसे आपको आके तोड़ना है. एंड बेसिकली जैसे ही वो टूटेगा हमारे गेस्ट आपके सामने सर पक्का ना आ जाएंगे. 100%. कितना? 3 बार? 3 बार. 3 बार रखते हैं. Yeah, absolutely. So you just have to. हाँ, रेड कम. अच्छा, माय फ्रेंड रेड, इसकी वजह से आज हम खाना खा रहे हैं.
भाई छूट जाएगी. What do you have to say? आवाज दी है रेड को और ये अपने साथी इसमें है साथ में. हाँ, मेरा शुरू से ऐसा है, एक बार किसी जगह पे घुस जाओ फिर मैं पूरी फैमिली ले जाता हूँ. सो ये रेड का मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है. सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि हम सब हैं इस फिल्म में, और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था. और क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो फिल्म बनती है, ये पहले वहाँ के जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो उसको डब करते हैं और उसके बाद उसके ग्राफिक्स जो हैं उसको शूट किया जाता है. लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग ये रहा कि ये ऑलरेडी शूट हो चुका होता है और फिर हमें अपने हिसाब से उसको कुछ डायलॉग बोलने हैं. लेकिन यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन का बड़ा स्कोप रहा और हम सब ने बहुत इम्प्रोवाइज किया. आपने देखा होगा बहुत सारे डायलॉग्स, अगर आप ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन देखें और ये देखें तो बड़ा सारा आपको फ़र्क नज़र आएगा. और बड़ी मस्ती की हमने. सो मुझे बहुत मज़ा आया देख के. और ये जब डबिंग करना शुरू किया तब जाके मैंने फर्स्ट पार्ट देखा, मैंने देखा नहीं था. तो मुझे इतना मज़ा आया देख के. और अब वेट है कि ये फिल्म रिलीज़ हो और हम अपने आप को सुने और देखें. ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कॉमेडी फिल्म है. और बच्चों के साथ साथ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आया देख के. सो ये कहना गलत होगा कि ये बच्चों के लिए ही है, पर हाँ बच्चे जाएंगे तो माँ बाप को साथ लेके ही जाएंगे. सो ये अच्छा होता है. बच्चों की जो फिल्म, विवेक सर आपको बहुत बहुत बधाई. ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सही चीज़ है, क्योंकि बच्चा अकेला तो कोई जाएगा नहीं 4 साल का, तो 2 टिकटें साथ में कॉम्प्लीमेंट्री माँ बाप भी खरीदेंगे. सो बधाई हो आपको, 3 गुना हिट तो आपकी फिल्म पहले ही है. किकू भाई, फ्रेनेमीज यूनाइट, कौन है यहाँ पे ज्यादा बड़ी फ्रेनेमी आपकी? इन दोनों में से? फ्रेनेमी इसलिए है क्योंकि जो पहला पार्ट था एंग्री बर्ड्स का, उसमें लेनर्ड और रेड के बीच में एक अनबन थी, या लेनर्ड ही विलन था. तो यहाँ पर अब जो है फ्रेंड्स, जो एनिमीज हैं वो फ्रेंड्स बन गए हैं, साथ में आ गए हैं, क्योंकि एक तीसरा आइलैंड मिला है जीटा का. तो इस बार रेड और लेनर्ड साथ में मिलके जीटा के खिलाफ बगावत करते हैं. लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने ये जो गेम खेला है, इसमें आपको खाली मेरी शक्ल मिली थी लगाने के लिए? कौन था भाई पिटवाने के लिए यहाँ भी? जीटा आप बताएं मुझे, ये जैसे फ्रेनेमीज की बात कर रहे हैं, दोनों सेट पे भी मिलके ऐसा खून पीते हैं, मतलब ऐसा करते हैं आपके साथ? सच बताऊं या सच थोड़ा कंट्रोवर्शियल मसाला दे दीजिए थोड़ा सा प्लीज. सच तो यह है कि कॉमेडी ना वैसे माहौल में बनती नहीं है, और जो हमारे शो में जो कॉमेडी बनती है वो इसीलिए बनती है क्योंकि हम सब एनिमीज नहीं, फ्रेनेमीज नहीं, वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हैं. और जितना ज़्यादा हम लोगों ने एक साथ काम किया है उतनी ही गहरी हम सबकी दोस्ती हो गई है. हेल्दी कंपटीशन रहता है कि यार पंच लाइन्स मैं भी उतना ही बेहतर डिलीवर करूं, या मैं भी कंट्रीब्यूट करूं उतना ही एपिसोड के शो के ह्यूमर में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत अच्छी दोस्ती है सब में, और इसीलिए हमारा शो इतना बेहतर बना है. और इसीलिए आई थिंक हम तीनों को वी हैव बीन चोजन बिकॉज जो केमिस्ट्री हम सबकी है इतने साल काम करने के बाद, that is translating in the film also. Right. तो कपिल सर, इससे पहले नहीं हो पा रहा था ऐसा, मतलब पहले मौका नहीं मिला या क्या हुआ था? तो जबरदस्ती तो नहीं घुसेंगे ना, कोई बुलाएगा तो जाएंगे. तो पहले एक बार मेरे को 1-2 ऐसी मूवीज के लिए हुआ था डब के लिए, पर मुझे आइडिया नहीं था तभी. मुझे लगता था शायद कार्टून की आवाज़ में बोलना पड़ता है जाके, ऐसी आवाज़ें निकालने. तो मैं यही सोच के गया था, मैं 2-3 आवाज़ें भी सोच के गया था जब भी. लेकिन जब गया तो उनकी जो टीम थी वहाँ पे वो मुझे मिले, बोलते सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं वो कार्टून की आवाज़ निकाल ली ना. बोलता नहीं ये सब नहीं, आप अपनी आवाज़ देनी है. बोलते किसी की आवाज़ निकालनी होती तो हम किसी और को ले लेते. तो मैंने कहा ये तो और ईजी हो गया. तो फिर किया, बड़ा मज़ा आया. अब थैंक्स टू सोनी टीम, और अब तो आ ही गए हैं. तो फिर मुझे लगा, और क्या होता है विवेक सर, आप तो समझते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट. एक बार हमने आवाज़ दे दी ना, अब सेकंड सीजन में आप किसी और की लेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ऑडियंस. हाँ जी, तो फिर वो बस. और ये मज़ा ये है कि इस इंग्लिश फिल्म में, बेसिकली हॉलीवुड की फिल्म है, और उसके बाद इसको आपको इसमें इंडियन तड़का देखने को मिलेगा. जैसे ये लेनर्ड द पिग जो है, उसको पूरा भोजपुरी तड़का दिया किकू ने. तो रेड जो है वैसे पता नहीं कहाँ का, लेकिन अभी ये पंजाब का है. तो बाकी अर्चना जी तो पूरे भारत की है. तो हमने बड़ा मज़ा किया इसको डब करते हुए, हमें बड़ा मज़ा आता था, बहुत हंसते थे देख के इसको. और आगे चल के भी मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे और काम करने को मिले, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा. आई एम श्योर इसी के अभी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे. यहाँ पे ये लाइव दिखवा देते हैं आपको पूरा का पूरा एक्शन विद दीज फ्रेनेमीज हु कम टुगेदर. और एक गेम हो जाए हमारी कास्ट के साथ. हाँ, मतलब अच्छी बात के लिए, हाँ थोड़ा जोश तो हो जाए. सो इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू प्ले द गेम एंड नॉक दिस थिंग ऑफ. क्या करना है? ये जो लेनर्ड है ना, इसके थोबड़े पे मारना है आपने. ये तो बहुत आसान होगा. ये वाला हाँ, ये वाला है ना. सो हो जाए. क्या मारना है? एंग्री बर्ड्स. सर बर्ड्स आ रही हैं आपके लिए. अच्छा,
अच्छा, तो क्या मिलेगा जीतने वाले को, मतलब क्या होगा? यार इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं करवाया था तुमने मुझे यार। नहीं मतलब ये गिराने, अगर हाँ, सब के सब गिराने। गिरा दिए, हाँ। जैसे बॉलिंग करते हैं वैसे, हाँ हाँ, हाँ, you तो just have to knock this off। तो फिर क्या मिलेगा? फिर एक केक आएगा, अच्छा केक फिर केक काटेंगे। वो तो सब खाओगे, फिर आप भी खाओगे। हमारा स्पेशल क्या है? मतलब ओके, बेइज्जती लेडीज मेरी फर्स्ट, है। आप शुरू करेंगे। इससे ये मार तो यहाँ आ जाए। This is the mark। अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां। एंड वो मुझे बस ये समझ नहीं आया, मार्क यहाँ से पहले में, दूसरे में यहाँ और तीसरे में यहाँ कैसे हो गया? बाकी सब सही है। सो लेडीज हमेशा आगे। हाँ, सबसे हमेशा, आगे, सबसे आगे। कपिल बाजी आपकी बारी। उन्होंने खुद ही मुझे इनके ऊपर मारना है। भाई साहब, I'll take the- ओके, नहीं नहीं, मैं माइक नहीं छोड़ता मैं। कहाँ, कौन कौन सा मेरा मार्क? यही लगा लेते हैं। ये ओके। अब समझ में आया रेड क्या क्यों है बात ये। है? चलो हाँ, बच्चे कुछ है। लेनर्ड से ऐसी क्या दुश्मनी है? तेरा लेफ्टी। ये नजर लगाते हो ना जो तुम लोग। मैंने क्या अच्छा, बोला? काम उन्होंने चल रहा था बोला। मेरा। एक और चांस। हाँ, थर्ड, बस तो लास्ट अर्चना जी के टाइम पे तो आपने दोबारा से खड़े करके दिए पूरे। दोबारा खड़े करो भाई जल्दी से। वरना बोलेंगे लेडीज आर टेकिंग चलो, हो जाए जल्दी से। एडवांटेज। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मतलब ऐसा है क्या, ये रूल है? बाजी को टाइम चाहिए था और कुछ नहीं हो रहा यार, टाइम ले पीछे लिया। वाली नहीं की नहीं, मर्जी टाइम है। नहीं, ओके। अच्छा ठीक है। देखो, ये साउंड मैं हुई नहीं। ये कौन कर रहा है एक्चुअली? पता नहीं कौन कर रहा है। वो उई, टेटुआ कौन दबा रहे कर रहा कोने है? में किसी का। ये कोई और वॉइस ओवर। भाई आखिरी मौके तक बच पाएगा ना? हाँ ठीक है, चलो जी। पाजी आप भी पीछे। हाँ मैं पहले उही वाला कौन है बताओ? आई एम गोइंग टू सी नाउ कौन कर रहा है हुई। किलिंग इट, किलिंग इट। मुझे अपने आप से कितनी दुश्मनी है देखिए। छोड़ दो इसको। ये कैसे गिरेंगे यार? क्या छोड़ दो ये? बस हाँ, दे मेकिंग इट इजियर फॉर यू नाउ। स्मॉलर लॉट। Come on, जोरदार तालियां for these three angry birds, ladies and gentlemen. Zeta, Red and Leonard, जिन्होंने कमाल का काम किया वहां भी और यहाँ भी। और कपिल सर, ये आपके लिए मेरे को दे दो, बड़ा क्यूट है ना? मेरे काम आएगा। अर्चना जी आपने ऑलरेडी ले लिया है आपको जो चाहिए था, है ना? So now it's time for the cake cutting, ladies.
जैसे बताया कि ये पहले जब वहाँ पे हॉलीवुड में ये बनाते हैं तो पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं डब करते हैं, फिर जो उन्होंने जिस तरीके से बोला होता है उस तरीके से ये लोग ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, और फिर हम लोग जब देखते हैं इसको तो हमारे लिए ये होता है कि एक तो क्योंकि बर्ड है और क्यूट है तो थोड़ा सा कभी कभी डिपेंड करता है कि कौन सा सीन चल रहा है, कैसा सीन चल रहा है। तो कभी कभी आप अगर पूरी फिल्म देखेंगे तो बीच में मैंने बहुत सारी आवाज़ें निकाली हैं, कभी कभी धर्मपा जी की आवाज़ भी निकाली है, तो अपनी आवाज़ तो है ही, और थोड़ा हल्का सा उसको मोल्ड किया है कभी कभी, पर नॉर्मली जो इस पे सूट करती है सिचुएशन के हिसाब से वही, तो ऐसी कोई खास रिसर्च थी नहीं। और मैंने तो फिल्म भी तब देखी जब मैंने ये पहला सीन डब कर लिया, फिर मैं घर जाके देखा एंग्री बर्ड का पहला पार्ट जो कि इंग्लिश में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे तब समझ में आया कि ये हिंदी में क्यों डब करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत है इंडिया में तो जिनको हिंदी में फिल्म देखनी है अच्छे से समझ में आती है। सो बस यही था, कुछ खास तैयारी नहीं थी, बाकी बहुत सारी हेल्प करता है ये कैरेक्टर, क्योंकि ये जैसे दिखते हैं, जैसे हरकतें करते हैं, उछल कूद करते हैं, एक दूसरे के साथ जो भी इनका इक्वेशन है और जो भी ये, तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है, तो कैरेक्टर ही आपको सपोर्ट करता है। तो मुझे मज़ा आया करके। धर्म जी के अलावा और कोई भी और एक्टर्स की आवाज़ निकाले आपने इसमें, या फिर अब वो आप पिक्चर देखो भाई साहब, सारा ही आप पता कर जाओगे। धर्म जी का आवाज़ निकालने में कितना इजी था? नहीं How was it? मतलब आवाज़ तो नहीं धर्म जी की जैसी मैं निकाल सकता, कभी भी नहीं, वो बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी, पर एक एक कुछ सीन में इसको गुस्सा आता है, कुछ सीन में ये फनी होता है, कुछ सीन में ये इरिटेट होता है, ये जो करेक्टर है। तो एक जगह तो नाना पाटेकर साहब की भी आवाज़ निकली थी, जैसे इस करेक्टर की कोई तारीफ कर रहा होता है तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, और इनकी टीम भी हंसने लगी, बोलते सर यही सही है। तो ये बोलता है कैरेक्टर उसको कि अच्छा लगता है, तारीफ किया, करो तारीफ, सुनने में अच्छा लगता है। तो पता नहीं अब क्या क्या किया सर, हमें खुद भी अब याद नहीं है, पर हमें इंतजार है जब फिल्म आएगी तो सब साथ में देखेंगे। Hi, can you hear me? Hi Maya, this is Mayur here from Beyond Bollywood. My question is for Kiku. Like animation films, especially marquee films like Angry Birds, when they are turned into a franchisee, तो एक loyalty बनती है, and like personally for you, I believe you have young children, and like how much a matter of pride it is for you to be, giving voice to a character that your child perhaps loves so much. But that's true. It does make a huge difference because when I told my kids that I'm doing this, they were extremely excited because they've played the game Angry Birds, then they've seen the film Angry Birds, and then a part 2 coming in and their father giving the voice to the character. So they were very kicked, and probably I was more kicked with the idea because my kids were so happy. So it's almost like going back. Yesterday my son told me, it's coming out now, so invariably, obviously, the way they study and all, they go and watch the English version. But now my son and his friends are extremely excited about watching the Hindi version. So he's telling me, he's been planning कि जब release होगी हम कहाँ देखेंगे, मैं अपने friends को ला सकता हूँ कि नहीं, सब जाके साथ में देखेंगे. So it's a very great feeling because, when my kids are also associated with some work that I'm doing, obviously I enjoy it more. And obviously the entire process of dubbing has been so exciting because कभी कभार क्या होता है कि वो स्टोरी को इंटैक्ट रखना है, जैसे कपिल ने भी बताया कि वो काफ़ी इम्प्रोवाइज किए, हम भी किए इम्प्रोवाइज, लेकिन हमें फिर वो भी ध्यान रखना है कि कहानी को भी आगे बढ़ाना है साथ साथ में. मतलब द स्टोरी शुडंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय if we by chance change a line, or the meaning of the line should not change. So you got to get humor into it while the meaning stays the same. So it's extremely exciting. It's quite challenging also. So yeah, quite enjoyed the process. Just another question. किको ने इतनी इंग्लिश बोली, मुझे लगता है इंग्लिश वाली फिल्म का भी यही करेगा डब। ये गोरे लोगों को दिखा रहा है। Like just on the question, you said the word challenge, and for any film, for any voiceover artist, while dubbing, and obviously given that right now, people identify all three of you all with the Kapil Sharma show. So what is the challenge? Is it a challenge to ensure that the character that comes out, the voice, that it should come out as Leonard, Zeta, Red, and not the characters that we've seen you guys play from in Kapil Sharma show? For me again? Yeah, you can start. When you're doing the Hindi version, even I kind of understood कि एक तो relatability होनी चाहिए ना. अब हम कर ही रहे हैं voice. यहाँ पर हमारे शो में भी कपिल शर्मा, कप्पू शर्मा और बच्चा यादव का एक अनबन चलती है, लाइक एक नोक झोंक सी चलती है. वही नोक झोंक अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इन कैरेक्टर्स में तो एक रिलेटेबिलिटी बढ़ती है. It kind of made sense to me, and I guess it made sense to everyone else around also. So that's the reason why I did the entire this thing in the voice of Bachcha Yadav. And it's quite like the name of the character is Red. अब Red तो एक अंग्रेजी शब्द है, English word है, color जो भी Red.
तो अभी उसको बोला यार रेडवा, तो कितना अजीब लगता है किसी को रेडवा बोलते हुए, तो मुझे तो खुद ही बड़ा एक्साइटिंग और फनी लगा। तो करते हुए व्हेन वी आल्सो स्टार्टेड, मैंने भी बोला कि हम ट्राई करते हैं, भोजपुरी भी ट्राई करते हैं, ऐसे भी ट्राई करते हैं कुछ और। हमने 2-3 चीजें ट्राई की करके, मुझे और आसपास के सभी लोगों को लगा कि भोजपुरी करते हैं, मजा आएगा। सो या Ma'am, can you add to it? मैंने इंस्टिंक्टिवली जो मुझे झलक देखकर आपके सामने वो सीन प्ले किया जाता है, तो पहली कुछ लाइनें देखकर ही एक इंस्टिंक्टिवली एक रिएक्शन हुआ कि मैं इसे ऐसे एक्सप्रेस करूँगी। हम एक्टर्स हैं तो हम हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, उसकी वजह से जो मॉड्यूलेशन आता है एक्सप्रेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्रेशंस पर्दे पर हैं, तो इंस्टिंक्टिवली वो एक्सप्रेशन देखकर जो मेरे अंदर से आवाज़ निकली, वो मैंने वहाँ पर आई यूज़ दैट वॉइस। उसमें कभी कभी जैसे कपिल बोल रहा था कि कभी इसकी आवाज़ कभी उसकी आवाज़, तो ऐसे कभी हल्की सी पंजाबीपना आ गया मेरे, आज मेरी बेबी आज आ जाए जाता क्यों नहीं, हल्का सा वो एक अंदाज आया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने पूरी उसमें जीटा पंजाबी ही बोलती है, पंजाबी एक्सेंट में बोलती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, हल्का सा एक नॉर्थ इंडियन टच है। एंड नॉर्थ इंडियन ह्यूमर बहुत बढ़िया होता है, तो उसमें जो लहजा आता है उसमें एक मज़ा आता है। तो आई यूज माई इंस्टिंक्ट टू डू इट। एंड हमने ना कल्चरली अडेप्ट किया है इसको, कि हम कल्चरली हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग सिनेमा बहुत देखते हैं। तो एक सीन था जिसमें जीटा डांस करी, तो मैंने अपने आप से ही बोला अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। वो इंस्टिंक्टिवली आया मेरा कि वो जब डांस कर रही है तो क्या मतलब उसके दिमाग में क्या है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय दीज पीपल। तो अपने आप ही मेरा मैंने दे डिडंट नो कि मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे ही माइक ऑन हुआ, मैंने खाली डांस पे मैंने बोला अपना टाइम आएगा अपना, एंड वहाँ पर लाफ्टर हुई। इंस्टिंक्टिवली जो हुआ उससे जो रिएक्शन आता है ना, that has worked for me, for my voice of Zita. या कपिल जी, या इधर इस दिस साइड, मेरा आप तीनों से ही है कि ये करते हुए आपने पहली बार किया कपिल जी, तो कितना मुश्किल कहाँ पे आई, कितना कठिन लगा कहाँ पे, आप तीनों बताइए कहाँ कहाँ। डबिंग तो एक्चुअली पहले भी हम लोगों ने बहुत बार की है, पर हाँ किसी अपने अलावा छोड़ के किसी और कैरेक्टर के लिए करना तो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मुझे तो मज़ा आया करके। बाकी मैं हमेशा बहुत कतराती हूँ डबिंग करने से, क्योंकि आपने ऑलरेडी परफॉर्मेंस अपनी दे दी है फिल्म में, आपने बहुत मेहनत करके, और फिर उन्हीं डायलॉग्स को दोहराना इतना पेनफुल होता है ना, कि मैं डबिंग सिर्फ 1-1 घंटे के लिए करती हूँ ताकि, और मुझे लगता है मुझे बंद कर दिया डबिंग थिएटर में, अब मुझे आवाज़ देनी है अपनी आवाज़। लेकिन इस डबिंग के लिए इसमें जब वॉइस दी एंग्री बर्ड्स 2 में, तो एक मज़ा आया कि यू आर रिक्रिएटिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑल ओवर अगेन। हमने इन कैरेक्टर्स को एक नया जीवन दिया है हिंदी भाषा में, जिसमें करने में हमें बहुत मजा आया। आई थिंक दैट यू विल आल्सो एग्री दैट हमने रिक्रिएट किए हैं। अब ये जो अंग्रेजी कैरेक्टर्स हैं उनको हमने हिंदी में वापस से जीवित किया है, और हमने उनको हिंदी कैरेक्टर्स को नया जीवन दिया है। सो फॉर मी दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। हेलो विवेक जी। हेलो कपिल जी, मेरा सवाल आपसे है। जी मैम। आरती सक्सेना। हेलो मैम। हाँ, आपने अभी बोला कि आप जहाँ भी जाते हैं अपना परिवार लेके जाते हैं, जी राइट? लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पूरा देश लेके चलते हैं। शुक्रिया मैम, लव यू, थैंक यू। आप खुश रहते हैं तो लोग खुश रहते हैं, आप दुखी होते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। अरे थैंक यू सो मच मैम। तो अभी मैं हमेशा शो देखती हूँ आपका, तो आपकी मम्मी हमेशा रहती हैं शो में। जी। आपने एक अच्छे बेटे होने का सबूत तो दे दिया। ये एंग्री बर्ड के जरिए आप एक्चुअली अपने बेटे को मतलब अच्छे डैडी बनने का सबूत दे रहे हैं। अभी वो आने वाले हैं, तो पहले से तैयारी ये पहले से, लाइक छोटे बच्चे इतनी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। नहीं, मतलब लाइक तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी अच्छा में मुझे डैडी लगता है बनने ये के लिए। डेस्टिनी आपके लिए अपने आप ही प्लान करते हैं। तैयारी देखिए, ये भगवान ने मुझे खुद ही ऐसे काम में भी ऐसा दे दिया कि जो भी होगा, बेटी होगी बेटा होगा, जो भी होगा स्वस्थ हो, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और पर जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी बच्चा, तो वो देखेगा जब कि अच्छा मेरे पापा ने ये सब किया है, तो प्राउड फील होगा। क्योंकि सबसे पहले तो वो ऐसी ही फिल्में देखेगा, सीधा तो शोले देखेगा नहीं। तो जब वो बच्चों वाली फिल्में देखेगा तो मैं बताऊंगा उसको कि बॉस दैट्स मी। सबसे पहले ये वाली फिल्म दिखाना उसे, है ना, जब वो हाँ ये अपनी एंग्री बर्ड्स। बिल्कुल। नहीं, हमारे घर में 1 साल का बच्चा है, वो यही देखता है, इसलिए मुझे लगा कि आपका भी आने वाला है तो ये वो भी यही देखने वाला है। विवेक जी। थैंक यू वेरी मच। विवेक जी। हाँ जी।
नहीं वो तो प्रोसेस शुरू हो गया ना, अभी भी क्या टिप्स लेने नहीं नहीं ऐसी कोई टिप्स तो नहीं किसी से ली, पर हाँ मतलब हमने देखा है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है। सो मेरा बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार रहता है, तो मैं जब अमृतसर में भी रहता था तो मेरे फादर बड़ा बच्चों से प्यार करते थे। हम लोग क्या सब पुलिस वाले थे, कॉलोनी में रहते थे, तो सब पुलिस वाले तो अपनी जॉब पे चले जाते थे, तो बहुत सारे छोटे बच्चे थे हमारी कॉलोनी में। हम लोग ऐसे उनको ले आना, उनको नहला देना, पाउडर डाल देना, बैठे रहना, तो मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे, तो अच्छी बात है, अपनी खुद की प्रोडक्शन है। विवेक जी इधर, ये मूवी जैसे आप डबिंग हिंदी में भी हो रही है, तमिल तेलुगु में भी हो रही है, तो जो इंग्लिश और रीजनल फिल्मों का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, ये डबिंग जो दूसरी भाषाओं में या जो हिंदी में या करना, ये कितनी अहमियत रखती है? आई थिंक एनिमेशन एक जॉनर जो है ना वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि थिएटर में लोगों को लाना एक बहुत कठिन कार्य होता है। तो एनिमेशन जॉनर स्पेसिफिकली जो है, हमने देखा है इतने सालों से कि जो ग्रोथ आई है वो डबिंग के थ्रू ही आई है। क्योंकि डबिंग का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एक कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, वो अपनी भाषा में वो एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं, जैसे कपिल जी ने अभी कहा। तो उससे काफ़ी इंसेंटिव होता है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ, जैसे ये पिक्चर है वो 8 से 80 के लोग देख सकते हैं, तो वो अगर अपनी भाषा में देखें तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके लिए वो इंसेंटिव होता है कि हम थिएटर में आएँ और ये फिल्म का मज़ा उठाएं। और बेसिकली जो हमने अभी देखा, ये ट्रेलर जो अभी गया है, ये ट्रेलर का 12 मिलियन व्यूज़ आए हैं हमें। इट इज़ मोर देन इवन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस इंग्लिश ट्रेलर, यू नो। सो वो जो कनेक्ट होता है वो एक अलग ही होता है, और डबिंग के वजह से जो परसेंटेज बॉक्स ऑफिस का कंट्रीब्यूशन भी, यू नो, उसके वजह से, डबिंग के वजह से बढ़ता है। तो आई थिंक it is a good way to connect with audiences and to take the film down to you know, the tier 2 tier 3 cities where people can enjoy content in the language they prefer to watch entertainment in. इन क्या क्या चीज़ें आप लोग मतलब डबिंग जब आप प्लान करते हैं, तो जैसे आप अभी बहुत सब पॉपुलर एक्टर्स को लिया जा रहा है इसमें कास्टिंग में, और जैसे भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी भी कई फिल्मों में भोजपुरी एक्सेंट यूज़ किया जा रहा है। लॉयन किंग में भी हमने देखा अभी, और अपना टाइम आएगा तो फेवरेट डायलॉग होगी। तो क्या क्या चीज़ें जहन में रखते हैं डबिंग करते वक्त? आई थिंक जो पॉप कल्चर होता है, बेसिकली जो पॉपुलर उस समय में जो चीज़ पॉपुलर होती है, उसी का जो राइटर हैं हमारे, इनफैक्ट तरणवीर जो राइटर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इसकी यू नो, इसके लिखने में। तो जो इस समय में जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं उन सब का हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट बनाने में, और बाद में ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज तो ये करते ही हैं। इनका जो टैलेंट है उसकी वजह से, क्योंकि इन ये जो ऑटोमेटिक आप देखते हैं टीवी में भी जो इम्प्रोवाइजेशन जो होता है, उससे जो मज़ा आता है वो लिखे हुए स्क्रिप्ट में कभी कभी नहीं हो सकता। सो बट वो भी जो बोलते हैं वो रेलेवेंट होता है आज की तारीख में, लोगों को क्या पसंद है, कैसे हंसाना है, किस चीज़ से लोग खुश होंगे। तो वो कॉम्बिनेशन के साथ, इम्प्रोवाइजेशन के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, जो करंट पॉप कल्चर में क्या फेमस है वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। Hi, sir. Sir, Padman has got a national award. Padman got a national award. Are there any plans to celebrate the moment with the entire star cast? And secondly, do you have plans to re-release it again? I think that's a different question for a different forum. But yeah, we are actually very happy. You know, at Sony, we've had a great summer. Spider-Man has crossed 100 crores. Once Upon a Time in Hollywood, that we just released, has become the highest grossing film for Quentin Tarantino. And Padman won the national award last week. So yes, we are happy. But we are equally excited about the release this week, which is of Angry Birds. And I think ye jo hafta hai is quite critical for us because we want families to come out and you know, love this film. And I have no doubt that with the talent that we have here on stage, that is something that is definitely going to happen. But yes, Padman is a separate discussion. We can talk about that on a later platform. Thank you. Kapil ji, Archana ji और Kiku ji. I just wanted to first of all compliment क्योंकि मैंने जो first franchise थी, जो first installment of the franchises saw in English, but definitely जो second installment अब आ रही है मैं हिंदी में ही देखूंगी क्योंकि आपके punches जो हैं आप लोगों आप तीनों के कमाल के हैं. My name is Ankita and I'm from Republic. My question to you is
कि आपने ये तो बताया कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक लहजा पकड़ा, कोई पंजाबी, कोई मिक्सचर एंड कोई भोजपुरी, लेकिन जब आप एक स्क्रिप्ट आपके पास आई, कितना एडिशन आपकी तरफ से था उस स्क्रिप्ट में, कितने चेंजेस या कितना इम्प्रोवाइज आप लोगों ने स्क्रिप्ट में किया? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज टू विवेक जी. पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये डिसीजन कब लिया कि ये एक पैकेज डील को साथ में जो है वो वॉइस ओवर करवाएं? पहले पैकेज रीड करवाएं. अच्छा, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि सोनी और कपिल का एक ऐसा रिश्ता है, अगर हम बादाम तो वो पिस्ता है, वैसा कुछ ऐसा. किल्ड इट सर, किल्ड इट. वाह वाह. तो अगर ठंडाई बनानी है तो दोनों चीज़ तो लगती हैं. तो आई थिंक द आइडिया वाज दैट व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कॉमेडी टैलेंट in the country, there's nothing better than the three people here on stage and his team. I think, especially with the relationship of that we have, we felt that it was an ideal match, and also I think they were also equally excited about the film and the characters. So the marriage of the two, in a way that their excitement plus the fit, which was seamless for each of these characters, I think fell into place. And when Kapil came on board, and then when Kiku came on board, and when Archana ji came on board, I think what you see on screen will be magic, definitely, no doubt about that. हेलो कपिल जी, अर्चना जी और किकू जी, मैं यहाँ आया सामने आपके सामने. sorry to bother, but the second question which I asked कपिल आपसे, उसका एक आंसर चाहिए था जी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. क्या था? कि कितना इम्प्रोवाइज करते हैं वो सब ना. नहीं, स्क्रिप्ट में आपकी तरफ से कितना योगदान था? आवाज और आप लहजा तो आपने पकड़ ही लिया, पर उसमें कितना कुछ चेंजेस थे वो मैं जानना चाहती हूँ. देखिए, जैसे अभी किकू ने भी कहा कि स्टोरी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. सो सपोज अगर किसी सीन में दो बर्ड्स लड़ रहे हैं तो वो बोल रहा है कि तू ये खराब है, वो खराब है, अगर तो ऐसा कुछ है तो हमें पता है कि अच्छा मेन बेस हमें पता है कि यहाँ पे दो बर्ड्स जो हैं वो लड़ रहे हैं, तो हमें कुछ भी बोलना है गुस्से में, तो वो कुछ, तो वहाँ पे वो कुछ भी चल सकता है, जो भी, अगर हम लोग अपना फनी टेक ले लें ऐसा. लेकिन हाँ, वो ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, स्टोरी से बाहर आप नहीं जा सकते हो. और स्पेशली जो हमारे रिकॉर्डिस्ट रहते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वो इतनी डिटेलिंग में काम करते हैं कि अगर हम जो भी डायलॉग बोल रहे हैं तो इसकी जो चोंच हिल रही है, तो अगर हमारा डायलॉग पहले खत्म हो गया और इसकी चोंच बाद तक हिल रही है, या इसकी चोंच पहले बंद होगी तो हमारी बकबक चल रही है, वो सब नहीं चलने देते हैं. सो बढ़िया बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है. और जहाँ जहाँ हमें मौका मिला वहाँ पे हमने इम्प्रोवाइज किया. और लहजा तो मैंने जैसे बताया कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रखा है इसमें. पर हाँ, वो फ्लेवर आपको मिलेगा. तो जिस वजह से उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके अपना वॉइस जो है रेड के लिए दूँ, तो वो भी हमारी मंशा जो है वो भी पूरी हुई है. तो छोटे छोटे वन लाइनर्स आपको देखने सुनने को मिलेंगे. सो मज़ा ही आया ओवरऑल प्रोसेस. जो कपिल ने भी बोला ना कि हमको मैच करनी पड़ती है लिपसिंग. सो द इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन जो इंग्लिश वर्जन है और हिंदी वर्जन ये है कि वहाँ पर जो वॉइस जिन्होंने दी है इंग्लिश में, ऑलरेडी उन्होंने वो डायलॉग्स बोल दिए हैं और उनके ऊपर फिर एनिमेशन हुई है. तो जिस हिसाब से उन्होंने बोला है उसी हिसाब से उन्होंने उस चिड़िया की चोंच हिलाई है. सो द एक्सप्रेशन हैज़ कम आफ्टरवर्ड्स. What we had to do was कि हमें ऑलरेडी वो चोंच हिल चुकी थी एक पर्टिकुलर जोन में और पर्टिकुलर वे में, और हमको उससे मैच करना था. तो हमें अपना इंडियनाइजेशन करना था. हिंदी के डायलॉग कुछ इम्प्रोवाइज करके, कुछ जो लेखक ने लिखे थे उनको यूज़ करके, और उस जो लिप का मूवमेंट था बर्ड्स का उनसे मैच करना था. इनके केस में डुक्कर का जो लिप का जो मूवमेंट था वो मैच करना था. तो हमारा चैलेंज ये था दैट वी हैव टू मैच नॉट ओनली द ब्रिलियंस ऑफ द वॉइसेस ऑलरेडी गिवन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी हैव टू मेक इट वन नॉच हायर एज इंडियंस, एज हिंदी स्पीकिंग, टू रीच द हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस and to adapt it to our Indian culture, ताकि लोगों को एलियनेशन ना हो कि ये तो अंग्रेजी किस्म के डायलॉग बोल रहे हैं. हमने बिल्कुल हिंदुस्तानी लहजे में और बिल्कुल हिंदुस्तानी अंदाज में उसी फ्लेवर के साथ अपनी आवाज़ें और डायलॉग दिया है. कपिल जी, आप दो आखिरी सवाल. कपिल जी दिस साइड. लिपिका जी बोले. इधर कैसे हो? हेलो मैम, मैं बढ़िया. आप कैसे हो? बड़ी चालाकी से आप टक्कर दे रहे हो. मिशन मंगल को क्लियर विंडो ढूंढ लिया आपने. मिशन मंगल को टक्कर कैसे? उसके दूसरी वीक क्लियर जा रही थी, अब आप आओगे तो एक टक्कर दे रहे हो. क्या कहना है? नहीं, दोस्त से भिड़ रहे हो?
ये सवाल आपने बड़ा चालाकी वाला मारा, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि मिशन मंगल एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये जो है ये बच्चों को टारगेट करके उनके लिए बनाई गई है और पर हाँ ऑब्वियसली बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी जाएंगे, सो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये चीज़ें तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो विवेक सर बेटर बता सकते हैं, पर हाँ हमने तो इसमें काम किया है और हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये रिलीज़ हो और सब लोग देखें, हम सब लोगों का रिएक्शन देखें। वैसे हमेशा आप आगे रहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। थैंक यू मैम। और इसी बहाने आप लोग तीनों एक एक लाइन बोलिएगा अपने कैरेक्टर की। हमें ऐसी फीलिंग आ रही सामने गब्बर बैठा है और हम सब तीनों बसंती हैं, एक एक लाइन हो जाए। नाच नाच बसंती नाच। अच्छा, आपने अर्चना जी को बोला नहीं मर्द की आवाज निकाल? मैंने पुरानी बातें हैं कॉमेडी सर्कस की मैम, अभी हम लोग हमारा बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन है वो हम लोग, बट हाँ जो आपने कहा मतलब वी आर वेरी थैंकफुल टू अर्चना जी की हमने जो भी जो शैतानियां की हैं पास्ट में कॉमेडी सर्कस के टाइम पे और अभी तक करता रहता है। मैं देखती हूँ तो ये इन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया है और शायद ये उसी का ही मैं हमेशा मैम को भी बोलता हूँ कि ये जो आपने इनकरेज किया है, हमेशा हमें इतना सपोर्ट किया है, कभी कभी बड़े खराब एक्ट भी करते थे तो तब भी हमें बड़ा ध्यान रखती थी और प्यार से पोलाइटली समझाती थी कि ये गलत हुआ। सो उसी सबका ये नतीजा है कि आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया बोलने का। सो हम लोग बहुत खुश हैं कि एक बार फिर से साथ में काम कर रहे हैं। इसका टैलेंट तब भी माइंड ब्लोइंग था और आज भी आई थिंक आज तो उससे भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो गया है। एंड हियर आई वर्क विद किको ऑल्सो, जो हमारे यहाँ पर हम तीन मौजूद हैं लेकिन ऐसे हमारे साथ और भी बहुत साथी हैं जो हमारे शो में वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू ईच अदर दैट हमेशा हमें एक दूसरे का साथ और सपोर्ट मिला। एक एक लाइन सुना दी जाए आपके कैरेक्टर की। गाना गाना है तेरे को? मेरे को ऐसे बिल फाड़ दिया, गाना गाना तेरे को, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। तुसी अंग्रेजी में गाओ हमेशा इसके लिए कपिल जी, आप अंग्रेजी में गाओ, अंग्रेजी में गाओ। कपिल जी जो भी अपना डायलॉग है ना अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो अगर मैं इतनी अच्छी बोलता तो मेरे को हॉलीवुड वाले ना बुलाते हिंदी वाले क्यों बुलाते? मैम भी वैसे ही मजे ले रहे हैं ना हमारे। नहीं एक एक लाइन बोलिएगा, अच्छा लगेगा। कोई लाइन याद है तुझे डायलॉग की? पर हाँ ऐसी लाइन को पर्टिकुलर ऐसा कोई पैसे डायलॉग याद लिए नहीं। पैसे लिए बोल दो। नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैसे नहीं मिलते इनसे तो हमने ले लिया उनसे जो चाहिए था। है एनी लाइन यू नो किको ऑफ द थिंग? जो कि ट्रेलर में एक लाइन था कि ये लड़ाई चल रहा है कि सुपर डांसर शो। तो मतलब हमने जो सोनी पे जितने शोज आते हैं, जितने लोग आते हैं, तो सबको हमने वहां पे प्रमोट किया है। एक ट्रेलर में तो वो नाम भी बोलती मेरा, अपने आप को कपिल शर्मा समझते हो? हाँ। एक जगह है भी, तो थैंक यू सर। और कपिल ने फिल्म में मुझे नहीं बल्कि सिद्धू को प्रमोट किया है। एक लाइन बोली ना तूने, है ना? अभी आई थी ट्रेलर में, क्या लाइन थी? हाँ टोको ताली, क्या कैसे बोलते थे? वो उनकी टीम ने कहा ओ टोको, मैं तो बोल दिया। इतना क्यूट करता है ना। ढड़िंग हो गया यार जी। Kapil, one last question. Kapil, one final question. We've seen in the trailer how frenemies become friends. You know, ultimately. आपके real life में भी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई है आपके colleagues के साथ हो, friends के साथ हो. तो ऐसे कोई angry bird बनकर जब सामने आता है तो कैसे deal करते हैं आप? कितना स्मार्ट वे पूछते ना चीजें। नहीं कोई नहीं सर, पता क्या होता है, हाँ होता है, हर इंसान के अंदर हर तरह के इमोशंस होते हैं और मुझे लगता है बीइंग एक्टर आपके अंदर सब तरीके के इमोशंस होने भी चाहिए। जब आपको बेसिकली एक्टर करता क्या है, एक इमोशंस ही तो हम लोग बेचते हैं अपने, कि जब उदास हैं तो आप दिखते हैं, आप कोई वैसी चीज़ याद करके आप वैसा एक्सप्रेशन जो है वो देते हैं। सो पर हाँ मुझे लगता है कि मैं बड़ा मैच्योर हो गया हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ों पे गौर नहीं करता हूँ ज़्यादा, और शादी के बाद मैं भी शायद सबके साथ हो जाता होगा, सब ठंडे हो जाते हैं। सुशील हो गया, तो ठंडा नहीं हुआ, सुशील हो गया। That's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. Anurag sir, this one's for you. Before we wrap up, how proud are you? Because Rovio International को यहाँ पे, you know, you are like representing the company. और यहाँ पे, this has come out really well. What do you have to say to all this? A very interesting moment. It's like almost 6 years back, I started to set up the nest for the Angry Birds in India and Southeast Asia. And so Angry Birds as a franchise is the largest downloaded entertainment brand on mobile space. Wow. And now what we have is like the biggest comedy show coming along, or probably the actors from the biggest comedy show. Thank you, and everybody. So it's a big movement. It's a big movement. Like there cannot be more validation for the, you know, the probably a great job done by Vivek. It's the second
association what we have for the second और movie इन now. सभी beaming smiles के पीछे, इन चेहरों के पीछे वो दिख रहा है. It's time to invite the Angry Birds one more time, ladies. इस तरह बताइए. जोरदार मुकाबला देने क्या यूएसपी ऑफर करने वाले हैं जो ये चीज़ को एकदम अलग बनाएगा ऑडियंस के लिए वर्ल्ड वाइड? यूएसपी आई थिंक यूएसपी ये है कि इंडियन टैलेंट है और हिंदुस्तानी भाषा है और इतनी बढ़िया फिल्म जब हिंदुस्तानी अंदाज में पेश आएगी सबके सामने बच्चों को बहुत पसंद आएगी बिकॉज ह्यूमर तो है ही लेकिन जो रियली मैं रिपीट कर रही हूँ लेकिन जो इंडियन अंदाज हम सब ने उसको अडेप्टेशन के तौर पे हमने ट्रीट किया है नॉट जस्ट कि हमने वो जो अंग्रेज़ी कलाकारों ने जो डायलॉग्स बोले थे वही बोल दिए हमने वाकई में उसे इंडियनाइज किया है और बहुत सिनेमा के किरदारों की हेल्प ली है इन द सेंस कि कुछ हमारे फेवरेट एक्टर्स थे जैसा कि कपिल ने पहले बोला था कि नाना पाटेकर साहब की आवाज़ निकल गई मतलब ऐसे सीन को देखते साथ ही ऐसा लगता है अरे ये लाइन इस अंदाज में बोलनी चाहिए आई थिंक दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द फिल्म दैट सबको रिलेटेबिलिटी मिलेगी आइडेंटिफिकेशन होगा इन कैरेक्टर्स जैसे हमेशा कहते हैं कि जैसे फिल्म भी 8 साल की उम्र से 80 साल के बुजुर्ग भी इस फिल्म को देख सकते हैं वैसे ही मेरे ख्याल से हमारा जो शो है वो शो भी सेम 8 साल से 80 साल तक देख सकते हैं सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूटनेस देयर इज रिलेटेबिलिटी विद द कैरेक्टर्स तो वो सेम चीज़ झलकेगी फिल्म में भी तो आई एम श्योर मज़ा आना चाहिए आएगा मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि 80 साल तक नहीं मेरे ख्याल से 90 साल तक ही देखा हाँ देखते हैं ना हाँ माई मदर वॉचेज 89 की है वो माशाल्लाह कल उनका जन्मदिन है 89 शी वॉचेज और वो बाकी ऐसे सास बहू वाले सीरियल वाकई नहीं देखती नहीं वही सेम कहानी जब ये शो आता नॉट बिकॉज मैं मेरे काफ़ी सारे शोज़ हैं जो वो नहीं देखती थी लेकिन अब जो ये शो है बोलती मज़ा आता है देखकर मतलब स्ट्रेस खत्म हो जाता है मैंने कहा मम्मी आपको क्या स्ट्रेस है नहीं लेकिन जो होता है ना कि एक हल्का फुल्का जो 1-1.5 घंटा बीत जाता है तो उसी अंदाज में ये फिल्म भी जो है आई थिंक लोग उसी अंदाज से देखेंगे कि इस 1-1.5 घंटे में जो उनके फेवरेट कलाकार हैं जो मतलब मंच पर आते हैं उनको हंसाते हैं वैसे ही ये दोनों और बाकी सब हंसाएं स्टोरी लाइन में कॉमेडी का लेवल बढ़ जाएगा आप लोगों की होने की वजह से हाँ
मुझे तो ऐसा लग रहा है। आई मीन नहीं, जेन्युइनली मुझे लग रहा है, बिकॉज जैसे आपने देखा ना ये मैंने रेड की डबिंग पहले कर चुका था, और उसके बाद हम लोग वेकेशंस पे जा रहे थे, तो मेरे बाद कीकू ने डब किया, और मैम तो हम लोग साथ में डब कर रहे थे। तो जब मैंने कीकू के सुना, बिकॉज आई लव इज बच्चा यादव का कैरेक्टर, तो सबका वो जो टीम थी उन्होंने भी कहा कि यार वो बड़ा सूट करेगा इस पे, क्योंकि उसका जो लुक है उसका वो उसको बड़ा सूट किया। तो मैंने जब सुना ट्रेलर में, मैंने तो अपना किया, वो मुझे पता ही था मैंने क्या किया, लेकिन कीकू का जब मैंने सुना, मैंने इनको बताया भी, मैंने कहा मुझे वो बेस्ट लगा। तो जब हमें लग रहा है, बिकॉज हम सबसे बड़े क्रिटिक तो खुद ही हैं, तो जब हमें अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है सबको दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। What has inspired you to take this dubbing part of this, like the Angry Bird 2 movie? Like, what has inspired you guys? कीकू क्या इंस्पिरेशन है आपकी? जैसे मैं काफी लेनर्ड द पिग जैसा दिखता हूँ पर्सनली। But nothing specifically. It's just when you watch the film and you watch it in totality, it's quite banter between the characters and it's cute. So I guess I तो love the zone. I love the zone of मतलब I wish के मैं तो बच्चों के लिए और भी काम मतलब करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेरी ऑडियंस भी, मैं तो बच्चा यादव जितना मैंने किया है, मुझे बहुत सारे बच्चे आते हैं मॉल्स वॉल्स में, कभी जाओ लॉट ऑफ किड्स कम टू मी और उनको बड़ा प्यारा लगता है कैरेक्टर। सो आई गेस इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई हैव डन बिफोर। सो या, क्योंकि बच्चों में अगर आप आपकी पॉपुलैरिटी बच्चों में है, बच्चे आपको पसंद करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में रहते हैं। जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें, बचपन में जो हम लोग देखते थे, मोगली देखते थे, ये शक्तिमान देखते थे, तो वो आज भी हमें याद है। आज भी अगर हमें मुकेश खन्ना जी कहीं मिल जाएंगे तो हम उनको झट से पहचान लेंगे। और हमारा तो वही है कि ये मतलब कीकू जो जैसे बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमारा शो जो है बच्चे भी देखते हैं, और वही फ्लेवर उनको इसमें भी देखने को मिलेगा। अच्छा अर्चना, आपका जो लाफ्टर सिग्नेचर लाफ्टर है, उसमें आपने कुछ वेरिएशन या एक्सपेरिमेंट किया है इसमें? हाँ, वेरिएशन किया है थोड़ा सा। यहाँ तो मेरा लाफ्टर जेन्युइन और प्यार वाला लाफ्टर होता है, हालांकि ये लोग प्यार से पंचेस मारते हैं मेरे ऊपर, तो प्यार वाला लाफ्टर होता है। ये थोड़ा सा विलनिश है और थोड़ा सा क्यूट जोन में है, मतलब विलनिश है लेकिन फिर भी मैंने उसमें क्यूटनेस निभाने की कोशिश की है। लेकिन लाफ्टर तो अंदर से आता तभी जेन्युइन लगता है, तो मेरे अंदर जो छोटा सा विलन बैठा हुआ था उसको मैंने बाहर जागरूक किया और फिर थोड़ा सा वेरिएशन दिया है लाफ्टर में। Last question, guys. क्या मान लिया जाए कि हॉलीवुड वाला जो वर्जन, उसका जो इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा था, उससे ज़्यादा ये वाला पड़ जाएगा? ऐसा मान लिया ऑनेस्टली हाँ, ऑनेस्टली बोलो तो मुझे तो लगता है। नहीं रियली, कपिल, मैंने जब कपिल और कीकू की डबिंग देखी और मैंने सुनी ट्रेलर में, तो वाकई मेरे में थोड़ा सा धक धक हो गया, बिकॉज आई सेड माय गॉड, एक होता है ना कैरेक्टर करना और एक होता है यू राइज अबव द कैरेक्टर। बोथ ऑफ देम हैव रिजन अबव द कैरेक्टर जो इनको मिले हैं। उनकी आवाज़ों में जो नॉटीनेस, जो मज़ा, जो मस्ती है, जो एक एनिमेशन के कैरेक्टर में होनी चाहिए, वो इन दोनों ने भरपूर दी। कितना खुशी होती है? बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू मैम। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है, आजकल जो डबिंग हो रही है वो बॉलीवुड फिल्म से और टीवी फिल्म से पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट मेरी आपकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक फ्लेवर छूट जाता है जब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसा करता है। डेडपूल के वक्त भी हुआ था ऐसा, और क्या हो जाता है? मैं सवाल नहीं समझी। फ्लेवर छूट जाता है जो एक पहले का जो कैरेक्टर का होता है। डेडपूल का एक बार छूट गया था, रणवीर सिंह भी जैसे किया था, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जगह टीवी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कर रहे हैं ये डबिंग। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? मुझे लगता है फ्लेवर उल्टा ऐड होता है, बिकॉज जैसे अगर आप कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट अगर करता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बेसिकली एक्टर्स ही होते हैं, तो ये होता है कि हाँ किसी जगह पे वो लोग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कभी वो सिर्फ अपनी आवाज़ देते हैं। तो मुझे लगता है अगर जैसे रणवीर सिंह ने किया या कीकू जो कर रहे हैं या अर्चना जी कर रही हैं, तो लोग इनको फैमिलियर हैं इनकी आवाज़ से, उस साउंड से, तो मुझे लगता है उल्टा फ्लेवर ऐड होता है। तो एक लेकिन हमने वो नहीं किया है जो सिर्फ हम बाकी फिल्मों में करते आए हैं। हमने वी हैव गिवन न्यू वॉइसेस, यू नो। आप ये नहीं बोल सकते ये कपिल बोल रहा है, आप ये नहीं बोल सकते कीकू ही बोल रहा है या अर्चना। आपको आवाज़ों में फेमिलियरिटी लगेगी, आप जानेंगे अच्छा ये अर्चना है, लेकिन ये नहीं कह रही है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। हमने कैरेक्टर प्ले किया है एक अनोखे अंदाज में। आवाज़ें तो हमारी हैं, लेकिन हमने वो अनोखा अंदाज दिया है इसको तीनों ने। आपके दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से जाकर आए हैं और अभी यहाँ बैन किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? We are sticking to Kapil Sharma, guys. I mean for the Angry Birds. वो आपके Any plans to go on break for parenthood? कुछ कहना चाहेंगे अपने fans को? शो से कुछ ब्रेक लेंगे, किस तरह टाइम स्पेंड करेंगे? नहीं, शो से ब्रेक भी मैं बोलूँगा सोनी को उल्टा हफ्ते में 4 बार कर दे। खर्चे बढ़े हैं हमारे। हाँ यार, 4 बार करवा दो। तो ऐसा ब्रेक लेने का तो कोई प्लान नहीं है। तो पर हाँ, आई मीन क्या टिप्स मैं
क्या क्या बोला आपने? मैं मुझे लगता है मैं वैसे भी, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मैं बहुत पार्टीज वार्टीज में नहीं जाता हूँ, तो वैसे भी घर पे ही रहता हूँ ज़्यादातर। और अच्छी बात है, एक और मेंबर घर का जो है वो आएगा और मज़ा आएगा। क्यों किक्कू तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किक्कू बता सकते हैं। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 14 साल का हो गया है, बड़ा वाला, वो अब उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, अपने दोस्तों में जाते हैं, तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई अगर नया नया आपके घर में आ रहा है, प्लीज़ वो डेज एंजॉय कर लो, गुजारिए वो उनके साथ, हाँ। पहले 10 साल उस बच्चे के मतलब बेस्ट पार्ट है आपके लाइफ का, तो या एंजॉय थैंक यू सो मच हाँ जी, बचपन में आपका फेवरेट कार्टून बहुत सारे हैं। एक वो आता था ना बल्लू, और वो दूसरा जो जो वो वाटर बोट चलाता है जो, फिर वो था, मोगली था, फिर बहुत सारे थे एक्चुअली, मिक्की माउस थे, ये सब आते थे, तो बड़े सारे कैरेक्टर थे। अब तो खैर बड़े सारे लोटपोट, नहीं लोटपोट भी चाचा चौधरी साबू मैंने बहुत पढ़ा है। ये कौन सा है? क्रॉसवर्ड। नहीं ऑसवर्ड। ऑसवर्ल्ड वो कौन है? ऑसवर्ल्ड, अच्छा ऑसवर्ल्ड द ऑक्टोपस। हाँ, ऐसे इतनी सारे कॉमिक्स हैं, इतने सारे एनिमेशन कैरेक्टर्स हैं, याद रखना नागराज मुश्किल है। होता था एक, है ना? मैंने हिंदी वाले, मैं टिंकल उसके कैरेक्टर थोड़ा इंग्लिश चाइल्ड है। उल्टा पुल्टा भी होता था कुछ। तीनों आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारा अगले हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है। वो देखिए। थैंक यू गाइस, थैंक